الرحمن الرحیم. ہم آج کل لینگویج ڈیولپمنٹ پہ اور ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, گریڈ 9, 10, 11, 12, بٹ سیم اپلائز ٹو 6, 7, 8 گریڈ میں بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے. ریڈنگ کے لیے ہم اپنے بچے کو کیسے تیار کریں, تو ہم آتے ہیں وہ آئیڈیاز جو ہم ایکسچینج کر رہے تھے. لیٹ می گیٹ بیک ٹو کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح آنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کو ہاؤ ٹو ریڈ والی بات پہ تو لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور ہائی ٹو ریڈ والی بات سے آگے لے جا کے ہم نے پھر اسے ریڈنگ کی اپرچونیٹیز بھی تو دینی ہے نا, کہ وہ جو اسکل ہم اسے دے رہے ہیں وہ اسکل وہ یوز بھی کرے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم سیکھتے ہیں نا, ہم آرٹ سیکھتے ہیں تو ہم پہلے بڑے آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں, میں لکھنا سیکھتا ہوں تو میں بڑے رائٹرز کو دیکھتا ہوں, تو ایسے انسپائرنگ ماڈلز, ٹھیک ہے نا, ایسے ماڈلز جو انسپائرنگ بھی ہوں, لیکن چونکہ بچوں کی انٹرسٹ بہت ویریڈ ہیں, انہیں ہو سکتا ہے بایوگرافیز میں انٹرسٹ ہو, یا اسپورٹس کار میں انٹرسٹ ہو, یا اسپیس میں انٹرسٹ ہو, یا فینٹسیز میں انٹرسٹ ہو, تو وہ ورائٹی اس میں ہونا. اور کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایکچولی آور ریڈنگ ووکیبلری اگر ہماری اتنی ہے نا, ہماری ریڈنگ ووکیبلری, تو ہماری رائٹنگ ووکیبلری اتنی ہوگی, اس سے کم ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ رائٹنگ کے وقت وہ مجھے لفظ یاد نہیں آتا انلیس میں نے اتنی پریکٹس کی ہو, لفظ کو کئی دفعہ یوز کیا ہو, اور میری ٹاکنگ اسپیکنگ ووکیبلری اس سے بھی تھوڑی ہوتی ہے, تو وہ لفظ ہوتے ہیں جو میرے ڈیسک ٹاپ پہ ہوتے ہیں. تو یہ اپرچونیٹیز اگر میں رائٹنگ کی بناؤں گا تو میری ووکیبلری, یہ میری ووکیبلری کو ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی, یہ بات بھی ہوگی تھی. اچھا, تو اب یہ ہے کہ ہمارا جو کہ جیسے پیراڈائم ہے کہ یار سٹوری سے بندہ سیکھتا ہے, میرے اسٹوری میں انٹرسٹ ہوتی ہے, تو کون سی سٹوری پر احسن القصص قرآن نے کس کو کہا ہے؟ سورہ یوسف کی سٹوری کو, حضرت سلیمان کی سٹوری. میں مثلا اپنے ریلیٹ کروں کہ 9ویں 10ویں میں جس کی وجہ سے مجھے انٹرسٹ پیدا ہوئی, وہ ٹیکسٹ بک کی وجہ سے نہیں ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری اور ملکہ بلقیس کی کسی ٹیچر نے سنائی, اور اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے سنائی اردو کی کلاس میں کہ وہ کئی پیریڈ میں چلتی رہی. اسی طرح مثلا بعد میں بڑے ہو کے جیسے سورہ کہف کی سٹوری ہے, تو بڑی زبردست سٹوری ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ سرفیس پہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن اصل میں چیزیں کے کنیکشن بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہم کریں, جو پیپل آف دا ڈچ ہیں, سورہ بروج میں جو بات آتی ہے بچہ اور بادشاہ والی, یہ بڑی زبردست سٹوری ہے. تو اس سٹوریز میں یہ ہمیں ہونا چاہیے, کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو ہمارے بچے کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ایز فلاں. تو اقبال نے جتنا اس پہ کام کیا ہوا ہے تو میرے ذہن میں آ رہی ہیں, بٹ دس از این آئیڈیا فار دا پیرنٹس, جسٹ این آئیڈیا, اینڈ کامنٹس میں وہ شیئر کریں کہ انہوں نے کیا چیز وچ انسپائرڈ دیم. شکوہ جواب شکوہ مثال کے طور پہ 8ویں میں میرے پاس آ گیا تھا کہیں سے, تو اٹ ریئلی انسپائرڈ می, اور میں نے اس کو پڑھا. پھر بعد میں جو طلوع اسلام ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یار اس طرح ہوا تھا. پھر یا جو ابلیس کی مجلس شورا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اب ہمارا بچہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی بات کر رہے ہیں جس میں سمجھ ہے. ابلیس کی مجلس شورا یہ پڑھنی چاہیے, نظموں میں ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے اب میں نے کئی اسٹوڈنٹس کا دیکھا ہے کہ نہیں جی میں تو ادھر رہتا ہوں, میں کراچی نہیں جا سکتی پڑھنے کے لیے, تو ان کو یہ وطنیت کی اور یہ جو چیزیں ہیں ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی, ٹھیک ہے. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی سفر کے لیے کے بغیر بھی کیا دنیا مطلب حاصل کی جا سکتی ہے, علم حاصل کیا جا سکتا ہے. اور لوگ کس طرح, ہم کس کی بات کر رہے تھے, کریمیہ کی بات کر رہے تھے, شیخات المکہ, ساری دنیا کی سیر کر کے پوری دنیا میں وہ پھر اوتھینٹک سرٹیفکیٹ صحیح بخاری کسی نے پڑھنی ہو تو ان کی ہوتی تھی. اسی طرح اگر پاسٹ سے, اپنے پاسٹ سے کرنا ہے کنیکٹ, تو مسدس حالی جتنی زبردست ہے اس میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. تو بات اس طرح آتی ہے کہ کچھ چیزیں تو ہماری مسٹ ریڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ہم نے ایک ریڈر پیدا کرنا ہے, تو وہ کچھ چیزیں ٹیکسٹ بک کے علاوہ, ٹیکسٹ بک تو ہے کہ پڑھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں, مسٹ ریڈز میں اردو انگلش مکس ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسٹ ریڈ کیا ہو, محمد عربی, میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, زبردست کتاب ہے, انٹرسٹنگ سی کتاب ہے, آپ ڈائلاگ کی شکل میں ہے. یا مثال کے طور پہ روڈ ٹو مکہ,
ज़बरदस्त किताब है मोहम्मद असद की, ठीक है, रोड टू मक्का बाई मोहम्मद असद। इसी तरह अगर बच्चा वाकई हम साइंस के बच्चों की अगर बात करते हैं तो उनको जैसे बिल ब्राइसन की किताबें हैं, बिल ब्राइसन की शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, ना सारी पढ़े, उसके 2 चैप्टर पढ़ ले, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि वो हमने डिस्कवरीज कैसे की हैं, वो न्यूटन की हरकतें किस किस्म की होती थी, ठीक है। तो और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है हर चीज़ मस्ट रीड तो नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें उसकी लाइब्रेरी में ऑप्शनल होनी चाहिए कि इनमें से कुछ चीज़ें आपने पढ़नी हैं, बट वैरायटी ऑफ थिंग्स, मिसाल के तौर पे, और जिन पे वो पढ़ के हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो कोई बुक रिव्यू लिखे, ठीक है ना, वो कोई एट द एंड उस किताब के बारे में व्हाट ही इंजॉयड और नॉट। कई अपॉर्चुनिटी ये किताब पिक की, नहीं पसंद आई दूसरी पिक कर ली, लेकिन उसमें वैरायटी तो होनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पे उसमें बायोग्राफीज होनी चाहिए, ठीक है, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज होनी चाहिए कि लोग किस तरह बड़े बने, मसलन उसमें ट्रेवलॉग्स हो सकते हैं। हिस्ट्री बंदा इनडायरेक्टली ज्यादा अच्छी सीखता है। एक बंदा हो ना इब्न बतूता वहां से वहां आया था और उसकी कोई स्टोरी लिखी हुई है, या एक बंदा जो मुल्कों मुल्कों सैर की, जैसे इससे मुझे याद आ गया जैसे शेर दरिया एक प्रोग्राम लगता था, वो बंदा रज़ाली आबदी जहाँ से ये दरिया सिंध निकला है वहाँ से लेकर जहाँ तक ये समुद्र में जाता है उसके सारे इर्द गिर्द के शहरों में वो गया और लोगों से बातें की, तो इस किस्म के ट्रेवलॉग्स हो सकते हैं। इसी तरह साइंस पे हो सकता है, ठीक है ना, जो साइंस पे मिसाल के तौर पे यूल वेर्न की चीज़ें हो सकती हैं, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, मूवी भी इस पे बनी हुई है। और इसी तरह यूल वेर्न की और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम अर्थ टू मून अगर जाएं तो कैसे होगा। यूल वेर्न चूंकि वो साइंसदानों के साथ दरमियान बैठते थे तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उनकी साइंस आ गई थी। तो अब इससे बात एक इंटरेस्टिंग ये आती है कि ये अब ये चीज़ें, एक तो मसला ये है कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए हर घर में। अब चूंकि लाइब्रेरी ऑनलाइन हो गई हुई है तो स्कूल के सिस्टम में मेरा बच्चा अगर लॉग इन करता है, ऑनलाइन सारे हम आना शुरू हो गए हैं, तो उसके या वो अपने अब्बे के मोबाइल ही यूज कर रहा है तो लॉग इन करे तो उसके ऊपर ढेर सारी ऑप्शन तो आए उसके लेवल की कि यार आप ये किताबें इनमें से कोई भी पढ़ना चाहिए, और लेकिन इंटरेस्टिंग किताबें, लतीफ़े भी हों, पजल्स भी हों, मुल्ला नसरुद्दीन भी हो, तो एक लाइब्रेरी की एक्सेस होनी चाहिए। कोरोना खत्म हो जाएगा तो असल वाली किताबें भी, लेकिन हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता परचेज करना, लेकिन अब ऑनलाइन सारी किताबों की वो आ गई है, तो ये ज़रूरी है कि एक लाइब्रेरी हो जिसमें ये किताबें कुछ मस्ट रीड्स हों, और उसमें कई ऑप्शंस हो सकती हैं ना। मिसाल के तौर पे हम जैसे कुछ किताबें, फिक्शन ज़रूरी है, इमेजिनेशन पैदा करता है, उससे कुछ मतलब एलिस इन वंडरलैंड है, एलिस इन वंडरलैंड आप पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारी अंदर मैथ भी है और आप उस स्टोरी को भी इंजॉय करते हैं। या आज के दौर में जैसे वो पालो कोलो की अल्केमी है, तो वो ढेर सारी उसमें चीज़ें हैं इमेजिन करने की और लाइफ के उसकी, ठीक है। बायोग्राफीज में हम मिसाल के तौर पे एक तो हमारा मकसद ये है ना कि कल्चर से कनेक्ट हूँ, साइंस से कनेक्ट हूँ, फ्यूचर से कनेक्ट हूँ, हम मिसाल के तौर पे अपने हीरो से कनेक्ट कर सकते हैं। मसलन हम उस दिन कह रहे थे कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं ये इतने बड़े बंदे थे कि H.G. वेल्स ने उनके बारे में ये लिखा है, H.G. वेल्स ने उनके बारे में ये लिखा है कि अगर बर्क की जुबान, नेपोलियन बोनापार्ट का दिल और मैकॉले का कलम इकट्ठा किया जाए तो वो बनता है। तो इनकी कोई स्टोरी होनी चाहिए ना, तो वो स्टोरीज, या मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में भी हमने लेनी है तो हमें इंस्पायर सिर्फ पास से नहीं करना चाहिए। बच्चे समझते हैं कि पता नहीं उस वक्त कोई हालात मुख्तलिफ होंगे, फलां होगा, आजकल के दौर में भी करना चाहिए। हमें वंगारी मिठाई की बातें एक भी एक स्टोरी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एक बंदा है ना जिसने 1 बिलियन दरख्त लगा दिए दुनिया में, हम तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ही कर रहे हैं ना। हमें अहमद ज़वेल की स्टोरी सुनानी चाहिए कि कैसे एक बंदा, अहमद ज़वेल अब तो फौत हो गए चंद साल पहले, केमिस्ट्री में चंद बंदे उस लेवल के बंदे पैदा हुए हैं। हमें मरियम मिर्ज़ा खानी की स्टोरी बतानी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये स्टोरियां अब हमें मिल जाती हैं इंटरनेट पे, हम वो ले सकते हैं। हमें मसलन अबुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पढ़नी चाहिए। तो अबुल कलाम जिन्होंने
दूसरा इंडिया का सारा वो सिस्टम बनाया है, ठीक है। और ये इसके अलावा अब ये इससे बात ये बताइए कि इन सारी स्टोरीज की मूवीज भी हैं। अब चूंकि आजकल हम ऐसे हालात में बैठे हुए हैं जहां पे पेपर से हम थोड़े से दूर हो गए हुए हैं, ठीक, तो मूवीज बंदा इंजॉय भी करता है और बच्चों की एज भी वो है कि मूवी, तो वो मूवी पे भी हम उनको लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें लिख रहा हूँ, मैं आयरटल सेना की मूवी क्यों नहीं दिखा सकता, मसलन फुटबॉलर की दिखानी चाहिए ना। हेलन केलर की मूवी मैं क्यों नहीं दिखा सकता, दिखानी चाहिए ना। और हेलन केलर की किताब भी पढ़ी जा सकती है। मैं मिसाल के तौर पे मैसेंजर भी दिखा सकता हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की लाइफ पे मूवीज़ बनी हुई हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ पे मूवीज़ बनी हुई हैं। इसी जो आजकल अर्तगल या फलाने चल रहे हैं, इनमें से भी कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके की जा सकती हैं जिनमें कोई कनेक्ट करने का हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टोरी सुनाई उनकी कलेक्शन अवेलेबल है, उनमें से कुछ ली जा सकती हैं, क्योंकि ही इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीजें होना जरूरी है, इसलिए इंटरेस्टिंग जब हम कह रहे हैं ना, तो उसमें मिसाल के तौर पे हिकायात सादी मुल्ला नसरुद्दीन, डीप लेसन्स ऑफ लाइफ, विजडम और वेरी वेरी फनी, ठीक। उसके साथ ही हिकायात सादी, ठीक है, उसका कम से कम एक एक दो दो चैप्टर हम उसको टेस्ट तो करवाएं ना कि यार ये चीजें भी हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली न्यूटन्स लॉज और ग्रेविटी, इससे ज्यादा सबलाइम और जिंदा रहने की जबरदस्त चीजें हैं जो अगर हम उसको कर सके तो ये आइडियाज हैं। तो हम ये करना ये चाह रहे हैं कि इन आइडियाज के नतीजे में जब हम उसको पढ़ने का तरीका सिखा दें और उसको पढ़ने की एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज दें। टेक्स्ट बुक तो एक थोड़ा सा आपने मॉडल करवा दिया ना पढ़ने का, एक छोटा सा मॉडल दे दिया कि ये कर सकते हो, लेकिन फिर जो एक किताब पढ़नी है ना, उसने कुछ पूरी किताब भी तो पढ़ी हो ना, इंटरेस्टिंग पूरी किताब फ्रॉम होल टू होल। और हम चाहते हैं कि फिर बुक राइटर बने। हमारा पर्पस ये है कि एट द एंड हम एक लिंग्विस्ट पैदा करें और एट द एंड हमारे पास जो बच्चा है वो एक ऑथर बने, राइट। तो वो तभी बनेगा कि अगर वो ऑथर्स की पूरी स्टोरी भी पढ़ेगा, फिर लोगों को देखेगा कि लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत करके कैसे वो करते थे, उसे पता चलेगा कि मैंने कैसे करना है। और फिर जो हमने एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रखा, ये इसमें कई मुख्तलिफ लोग होने चाहिए। मिसाल के तौर पे बच्चों की इंटरेस्ट क्योंकि वेराइटी की तरफ होती है ना, बात को स्पोर्ट्स में, बात को हिस्ट्री में, बात को साइंस में, तो वो कई होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने गोल कीपिंग में भी करना है तो मालपीट की होनी चाहिए किताब, ऑटोबायोग्राफीज हैं। हम पेले जो फुटबॉलर हैं उनकी भी हो सकती है, इमरान खान की भी हो सकती है अगर कोई है जिसमें मतलब उनकी लाइफ टू रीच फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस, किसी की भी हो सकती है। ये नहीं कि मतलब वो हमारे प्रेजेंट जो हीरोज हैं, मिसाल के तौर पे मलेशिया के जो हैं सदर, क्या नाम है उनका, प्राइम मिनिस्टर थे महातीर, डॉक्टर महातीर की, उससे कोई भी बंदा जिसने अचीव किया है, ठीक। तो इनकी स्टोरीज हमारे पास होनी चाहिए। और या मिसाल के तौर पे जिन्होंने बहुत ज्यादा काम दुनिया में किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है, की होनी चाहिए। या उधर से हमारे जो इब्न खुल्दून है, तो इनसे हम उनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। इनसे डिस्कनेक्ट करने की फिर बड़ी कॉस्ट है, वो समझता है कि पता नहीं हो क्या। और फिर असल बात यह है कि इन सारों को जब हम ये कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 5 बुक रिव्यूज इन अ ईयर होने चाहिए ना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें, चाहे वो अलिफ लैला की कहानी है या एटलीस्ट 5 बुक रिव्यूज वो बच्चा करे, तभी वो मतलब है वो कनेक्ट होगा इस लिटरेचर से, जो हम कह रहे हैं कि वो एक लिंग्विस्ट और एक ऑथर बच्चा बने। और फिर जो राइटिंग की प्रैक्टिस है वो बुक रिव्यूज में। और दूसरी हमने बहुत एक इंटरेस्टिंग जो सोचा है वो ये है हु एम आई, कि मैं कौन हूं, उसके बारे में वो अपना जर्नल और लिखे, हु एम आई, ताकि वो बच्चा ना उस प्रोसेस में एक तो वो लैंग्वेज के उस चीज़ों को यूज़ करे, ठीक है। और हु एम आई का मैं इसे हमारे एचएस इंग्लिश में आगे नीचे दिए हुए हैं कि किस तरह एक बच्चे को क्वेश्चनिंग के थ्रू कि मुझे क्या पसंद है, मैं करता क्या हूँ, मैं डरता किससे हूँ, मैं इंस्पायर किससे होता हूँ, मैं रियली में क्या चाहता हूँ, मेरे लोगों के साथ क्या ताल्लुक हैं, और वो अपनी डायरी में लिखे। ये जो डायरी लिखना है ना, अपनी डायरी और अपना ट्रेवलॉग लिखना कि मैंने पिछले हफ्ते क्या किया था, अपनी एक पर्सनल जो कोई भी ना देखता हो, तो उससे आप असल में ऑथर बनते हैं। सारे ऑथर्स
اسی طرح اپنی اپنی ڈائریاں لکھتے تھے. تو ڈائریاں لکھنے سے وہ, اب ای میل اور خط تو آپ لکھتے نہیں ہیں, تو وہ تو زمانے چلے گئے. تو اپنی ڈائری لکھنا ایک ڈیلی کی 5 منٹ, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس میں اب دا آئیڈیا از, جن چیزوں کو پیرنٹس کے اپنے ایکسپیرینس سے ٹیچرز بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس کتاب نے انسپائر کیا تھا, ٹھیک, تو یہ کتاب مسٹ ریڈز میں ہونی چاہیے. مجھے یہ کتاب لگتی ہے کہ یہ بھی آپشنل میں ہونی چاہیے. اینڈ وی آر ٹاکنگ فرام گریڈ 9 to 12. اینڈ سملر چیز ہم کہہ سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے شکوہ جواب, شکوہ طلوع اسلام, ابلیس کی مجلس, سورہ وطنیت, یہ اقبال کو اس میں اس لیول کا شامل کیا ہے تاکہ اس بچے کو پتہ تو ہو کہ وی ایز این اسلامک سویلائزیشن ویئر ڈو وی اسٹینڈ اینڈ وائی وی آر سفرنگ فار دا ریزنز وچ بلانگ ٹو آور اون فالیز. ٹھیک, تو یہ ایک آئیڈیا تھا. ونشهد لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.